امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام ممالک پر فوری طور پر 10% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق 150 دن کے لیے امریکہ درآمد ہونے والی تمام اشیاء پر 10% ڈیوٹی عائد ہوگی۔ بعض اشیاء اس عارضی ڈیوٹی سے مستثنی ہوں گی۔ نئی ڈیوٹی کا اطلاق امریکہ میکسیکو کینیڈا معاہدے پر نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے امریکی سپریم کورٹ نے دوسرے ملکوں پر صدر ٹرمپ کے اس اضافی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ ٹرمپ نے فیصلہ مایوس کن قرار دیتے ہوئے ساری دنیا پر 10% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ عدالت کے چند مخصوص ممبران پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ فیصلے سے دنیا خوش ہوگی مگر اس کی خوشی زیادہ دیر کی نہیں ہوگی۔ ٹیرف سے ملنے والے منافع میں مزید اضافہ ہوگا۔ ٹیرف سے حاصل رقم واپسی کے سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ اس پر ابھی قانونی جنگ لڑنا ہوگی۔ بولے عدالت غیر ملکی مفادات کے زیر اثر آ گئی ہے۔ ٹیرف لگانے کے لیے مجھے کانگریس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکشن 301 کے تحت تمام قومی سلامتی ٹیرف برقرار رہیں گے۔ بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے پر کچھ تبدیل نہیں ہوا۔ تمام معاہدے برقرار ہیں، صرف طریقہ کار مختلف ہوگا۔ امریکی عدالت نے کہا کہ ٹرمپ نے جس قانون کے تحت یہ ٹیرف لگائے وہ قومی ایمرجنسی کے لیے بنایا گیا۔ یہ قانون ٹرمپ کو اضافی ٹیرف لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ امریکہ کی کئی کمپنیاں پہلے ہی ریاست سے ری فنڈ لینے کے لیے عدالتوں سے رجوع کر چکی ہیں۔ امریکی جریدے فوربس کے مطابق 1000 امریکی کمپنیاں ٹیرف ادا کرنے کے باعث پہلے ہی ریاست سے ری فنڈ کا دعویٰ کر چکی ہیں۔ ان کمپنیوں نے اضافی ٹیرف کی مد میں پچھلے سال 14 جنوری تک $133 ارب ادا کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بہتر ہوگا کہ ایران مناسب ڈیل کے لیے مذاکرات کرے۔ ایرانی عوام اپنے رہنماؤں سے بہت مختلف ہیں، یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ ادھر جرمنی نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ مکمل کر کے مختصر قیام کے لیے برطانیہ پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی لندن پہنچے ہیں۔ امکان ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مختصر قیام کے بعد اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ اس دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بورڈ آف پیس اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی تعریف کے پل باندھ دیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ اس دورے میں پاکستان کو بڑی پذیرائی ملی ہے۔ کبھی پاکستان تنہائی کا شکار تھا مگر اب عالمی سفارتکاری میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نوکری خطرے میں ہے۔ انہوں نے نوکری بچانے کے لیے رہائی فورس کا اعلان کیا ہے۔ سہیل آفریدی کی اعلان کردہ رہائی فورس غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ فورس بنانا وفاق کے علاوہ کسی کا استحقاق نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو بیرون ملک یا پھر بنی گالہ منتقل کرنے کی کسی سطح پر کبھی گفتگو نہیں ہوئی۔ ڈیل کی باتیں کر کے یہ لوگ اپنی دکان کھلی رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ان کی پروڈکٹ کے پلے کچھ نہیں رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ ان کی نوکری خطرے میں ہے، تو اس بات یہ کر کے نا، یہ رہائی فورس اور یہ کر کے تو نوکری بیچارہ پکی کر دے پہ تمہیں بھی اعتراض ہونا شروع ہو گیا۔ تو سر اس کا کیا رزلٹ دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ غیر آئینی غیر قانونی اس طرح کی فورس بنانا؟ بالکل غیر آئینی ہے، بالکل غیر قانونی ہے۔ پاکستان میں جو افواج جو ہیں یا کوئی فوج جو ہے یا کوئی فورس جو ہے وہ ریاست کا استحقاق ہے، اس کے علاوہ کسی کا استحقاق نہیں ہے اور فیڈریشن کا استحقاق ہے۔ ڈیل کے بہت سے مطلب ہے، آپ کیا مطلب لیتے ہیں ڈیل سے؟ ظاہر ہے کہ جی ان کو بیرون ملک بھیج دیں گے یا نکال کے بنی گالہ شفٹ کر دیں گے۔ میرا خیال ہے اس قسم کی کوئی گفتگو کسی لیول پہ بھی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی سہولتوں وغیرہ کے حوالے سے یا لوگوں نے اپروچ کیا ہو، مجھے نہیں پتا۔ افواہیں جو ہے نا صرف اس ایشو کو جو ہے مارکیٹ میں یہ پروڈکٹ رکھنے کے لیے جو ہے افواہیں پھیلائی دی جاتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی فورس کو پارٹی کی منظوری کی کوئی ضرورت نہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اعلان کر دیا تو فورس بنائی جائے گی۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کے دوران سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں انٹرویوز نہیں دینے چاہیے تھے۔ اگر وہ انٹرویو دیں تو صرف بانی کی رہائی کی بات کریں۔ تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں کی قومی حکومت کی تجویز پر انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ان لوگوں سے ملاقات ہی نہیں کرنے دیں گے تو وہ انہیں قومی حکومت پر راضی کیسے کریں گے۔
سی ایم سہیل آفریدی کی ذمہ داری ہے سٹریٹ موومنٹ کی. اگر سی ایم سہیل آفریدی یہ سمجھتے ہیں کہ سٹریٹ موومنٹ کے لیے رہائی فورس بنائی جائے تو ہم اس کو بنائیں گے. اس کی انڈورسمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی شیخ وقاص کی اس بیان کو میں کیسے رسپونڈ کروں. مجھے اس کی تو سمجھ نہیں آ رہی. یہ ذمہ داری عمران خان صاحب نے ہی سہیل آفریدی صاحب کو دی ہوئی ہے. دیکھیں, جہاں تک علی امین صاحب کی انٹرویوز کی بات ہے, میری ذاتی یہ رائے ہے کہ اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت کی جو ایشو بنا ہوا تھا اس پہ ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ رہائی پہ ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ علی امین صاحب کو اس ٹائم پہ انٹرویوز نہیں دینے چاہیے تھے. اگر دے بھی دے تو اس پہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہو, اور عمران خان صاحب کی جو صحت کا ایشو ہے اس پہ ہی بات ہوتی تو بہتر تھا. دیکھیں, بات جہاں تک نیشنل گورنمنٹ کی ہے, تحریک انصاف کچھ چیزوں پہ پرنسپل یا چکزئی صاحب کے ساتھ ایگری ہو چکی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مینڈیٹ کی واپسی اگر نہیں ہوتی تو ہم فریش الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم نیشنل گورنمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیں گے. فواد چودھری کی جہاں تک بات ہے تو فواد چودھری کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کسی بھی قسم کے فیصلے کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. اور وہ عمران خان صاحب کو کیسے منائیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب تو ان سے ملنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو نہ کوئی ڈیل کی آفر ہوئی ہے, نہ ہی ڈیل کا آپشن ٹیبل پر موجود ہے. جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں رانا ثناء اللہ نے ڈیل کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو نہ حکومت اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کی آفر کی ہے. عمران خان صاحب کو ڈیل کب آپ لوگوں کی طرف سے یا کس کی طرف سے آفر کی گئی تھی؟ اس بات کو جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا, انہوں نے اس کو اس طرح سے فریم کیا کہ جیسے جی ان کو آفر ہوئی ہے, ہم اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں اور ان کو آفر کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے ہم کیس بھی ختم کر دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے, اور آپ جو ہے نا وہ باہر تشریف لیں اور وہ انکاری ہیں. حالانکہ اس قسم کی کوئی آفر نہ گورنمنٹ نے کہ جی آپ کے کیس ختم کر دیں گے, یا آپ کو جو بقول ان کے کہ جی میرا مینڈیٹ, کوئی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس بارے میں بڑی ان کی دو ٹوک پالیسی ہے کہ انہوں کی طرف سے کوئی نہ آفر ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. پاور ڈویژن نے صنعتوں کے لیے رعایتی پیکج کے تحت بجلی کھپت کے 2 ماہ کے نتائج جاری کر دیے ہیں. ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق صنعتی پیکج سے 2 ماہ میں 1,27,686 صارفین کو 12 ارب 12 کروڑ 50 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے. وفاقی حکومت نے اضافی بجلی استعمال پر صنعتی شعبے کے لیے 3 نومبر 2025 سے اکتوبر 2028 تک 3 سالہ سستے پیکج کا اعلان کیا تھا. پاور ڈویژن کے ترجمان ظفر یاب کے مطابق پیکج کے تحت چھوٹی بڑی تمام صنعتوں کو سرپلس بجلی کے استعمال پر 10.3 روپے فی یونٹ فائدہ ہوا. پیکج کے تحت 2 ماہ میں صنعتوں کو مجموعی طور پر 1176 ملین یونٹس فروخت کی گئیں. یہ یونٹس 2 ماہ میں فروخت ہونے والی کل صنعتی یونٹس کا 23.80% بنتی ہیں. صنعتی پیکج کے تحت دسمبر 2025 میں صنعتوں کو بجلی کی 557 ملین یونٹس فراہم کی گئیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سوئی گیس کمپنیوں میں گیس چوری اور لیکیج سے سالانہ 60 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. رکن کمیٹی گل اصغر خان نے دونوں گیس کمپنیوں کی نجکاری کا مطالبہ کر دیا ہے. کہا کہ گیس کاروبار کرنا سرکار کا کام نہیں ہے. رکن کمیٹی سید نوید قمر کا گیس سیکٹر کے بڑھتے ہوئے گردشی قرض پر اظہار تشویش. ڈی جی گیس نے بتایا کہ گیس کمپنیوں کا گردشی قرض 3,283 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے, جن کی رپورٹ ہر ماہ IMF کو بھی دیتے ہیں. کمیٹی کو بتایا گیا کہ گلگت بلتستان اور کوٹلی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں لیتھیم کے ذخائر کی نشاندہی ہوئی ہے. OGDCL نے خیبر پختونخوا سے تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت کر لیے ہیں. ابتدائی طور پر یومیہ 10 لاکھ مکعب فیٹ گیس 225 بیرل خام تیل حاصل ہوگا. ترجمان OGDCL کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں واقع نشپا بلاک سے تیل اور گیس کی نئی دریافت ہوئی ہے. براکزئی X1 کنویں سے یومیہ 225 بیرل تیل اور 10 لاکھ مکعب فیٹ یومیہ گیس کی پیداوار حاصل ہوئی. تیل اور گیس کی تلاش کے لیے کنویں کی کھدائی 30 دسمبر 2024 کو شروع کی گئی تھی.
न्यू कराची के एक स्कूल की हालत ज़ार पर रिपोर्ट तैयार की है नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद ने। आइए आपको दिखाते हैं। न्यू कराची सेक्टर 5F का फरहाना प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलतों के फुकदान का शिकार है। ये रवा हफ्ते के मनाजिर हैं। ये स्कूल इसके हाथे में, ये पूरी दुकानें इसके हाथे में। स्कूल की क्लासों और सहन में गंदा पानी जमा है, जबकि तलबा और असातिज़ा बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। असातिज़ा ने 2 रोज कबल अपनी मददाब के तहत सीवरेज का पानी तो साफ करवा दिया, लेकिन वालिदैन और असातिज़ा को ये खदशा है कि सीवरेज का पानी दोबारा आ सकता है। हुकूमत से भी सिर्फ इतनी अपील है कि वो देखे इस स्कूल की हालत को, हमारे पर रहम करे और स्कूल की तामीर के लिए कोई इक़दाम करे। पानी ये ज़मीन की लीकेज या यानी कि नलकों में पानी जब आता है, सीवरेज है, कुछ K3 की लाइन का शायद पानी आता है, तो इस वजह से ज़मीन के अंदर से पानी आया। ये 3-4 दिन पहले था इधर पानी, लेकिन हमारी बच्ची आती थी इधर चली जाती थी ऐसे, फिर बोल रही थी कि मम्मा वहाँ पे पानी बहुत होता है। मैं भी फिर बोलती थी कि आपका यूनिफॉर्म भी गंदा होता है, शूज़ भी गंदे होते हैं। स्कूल में 113 तलबा ज़ेरे तालीम हैं, 5 असातिज़ा तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यहाँ मौजूद तीनों क्लासरूम्स खस्ता हाली की तस्वीर पेश करते हैं। एक कमरे में क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं, दूसरे कमरे में क्लास 4 और 5 के तलबा हैं। कमरों की टूटी हुई छतें हैं, जबकि दरवाज़ों और खिड़कियों का नामो निशान नहीं है। हम जब सारी सहेलियाँ साथ होती हैं तो हम बात करते हैं कि दूसरे स्कूल इतने अच्छे होते हैं, उनमें इतने अच्छे पंखे लगे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होती हैं, और हमारा स्कूल इतना ख़राब है और हुकूमत के पास इतने पैसे हैं, वो हमारा स्कूल क्यों नहीं सही करते हैं। स्कूल जो था ना, तो इनमें ना बच्चे बहुत सारे आते थे, तो कुछ बच्चे चले भी गए हैं इस वजह से कि बहुत ख़राब स्कूल है और कुछ स्कूलों में पढ़ते भी नहीं हैं। अब क्लासरूम्स में बेंचें नहीं हैं, इसलिए वालिदैन ने ही घर का खराब सोफा रख दिया है ताकि बच्चे जमीन पर ना बैठें। मासूम लहजों में बच्चे बेहतर क्लासरूम्स, साफ माहौल और बुनियादी सहूलतों की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। हुकूमत से ये कहूँगा कि मेरा स्कूल ना अच्छा बना दे, जैसे प्राइवेट स्कूल होते, बिल्डिंग दीवार सही होती है, गेट लगे होते, पंखा लगा होता है, ऐसे बना दे। जब भी पानी आता है इस स्कूल में, फर्श गंदा हो जाता है, तो आप आते हैं स्कूल या फिर छुट्टी करते हैं? यस सर, हम तो आते थे पर मिसों ने छुट्टियां करवा दी हमारी। मैं हुकूमत को कहूँगा कि सारा फर्श सही करे और कहते इधर से पानी भी ना निकले कहीं से। स्कूल का वॉशरूम्स भी असातिज़ा और वालिदैन ने चंदा जमा करके तामीर करवाया है। 3 कमरों पर मुश्तमिल इस सरकारी स्कूल के दरो दीवार चीख चीख कर कह रहे हैं कि फरहाना स्कूल को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। महकमा तालीम सिंध की थोड़ी सी तवज्जो इस स्कूल की किस्मत बदल सकती है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। ICC T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले का आगाज़ आज से हो रहा है। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। मैच की तैयारियों के लिए न्यूजीलैंड की टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की, जबकि फ्लड लाइट्स में शेड्यूल्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन बारिश के सबब मंसूख करना पड़ा। ग्रुप मैचेस के अख्ताम पर ICC T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 का मरहला शुरू होगा। इस स्टेज पर पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मुकाबले की तैयारी के लिए न्यूजीलैंड की टीम ने दिन के औकात में भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक की बॉलिंग का तोड़ करने के लिए न्यूजीलैंड के कोचिंग स्टाफ ने बैटर्स को उस्मान तारिक के एक्शन में गेंदें कराई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन फ्लड लाइट्स में शेड्यूल था, लेकिन कोलंबो में बारिश के सबब ये ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया गया। अलबत्ता हेड कोच माइक हेजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 6 माह से इसी की तैयारी कर रहे हैं। खिलाड़ी पूरे एतमाद है, तैयारी भी मुकम्मल है। उम्मीद है कंडीशंस का बेहतर अंदाज में फायदा उठाएंगे। कोशिश होती है कि बेहतरीन टीम को मैदान में उतारें। रमज़ान मुबारक शुरू होते ही फैसलाबाद के बाज़ारों में गिरां फरोशों ने मनमानी करते हुए हर चीज़ महंगी कर दी है। ताहम ज़िले इंतज़ामिया ने गिरां फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। इरफानुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही फैसलाबाद की मार्केटों और बाज़ारों में अशिया खुर्दोनोश खुसूसन सब्जियों और फलों की कीमतों में गिराने की शिकायत आम हैं। जिस तरह ही रमज़ान स्टार्ट हुआ है, ये जितने भी फ्रूट फरोश हैं इन्होंने मसनूई महंगाई कर दी है। क्रैकडाउन करना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होने चाहिए जो चीज़ें महंगी बेचते हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कहते हैं कि गिरां फरोशों के खिलाफ
कार्रवाइयां जारी हैं। शहरियों का कहना है कि ज़िली इंतजामिया के दावे अपनी जगह, ताहम गरां फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन मौसर होना चाहिए ताकि वो मुकर्रर निर्खों पर अशिया खुर्दोनोश खरीद सकें। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। रमज़ान में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सक्खर की ज़िले इंतज़ामिया ने घंटा घर चौक पर अशिया खुर्दोनोश का स्टॉल कायम किया है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, माहे रमजान में महंगाई से सताई आवाम को रिलीफ देने के लिए सक्खर की जिला इंतजामिया की जानिब से अहम तिजारती मरकज घंटा घर पे सरकारी कैंप कायम किया गया है, जहां पे सब्जियां और फ्रूट्स सस्ते दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। यहाँ पे मौजूद खरीदारों से बात करते हैं। प्याज में कमी हुई है, आलू में भी कमी है और टमाटर प्याज में काफी कमी है। सरकारी स्टॉल? हाँ, सरकारी स्टॉल पे आम तो बहुत रेट ज्यादा है, लेकिन इधर सही है स्टॉल में। सारी रियायतें हैं, हर जगह माना 20, 30, 50 की कमी है। यहाँ पे हमने प्राइस लिस्ट में जो कीमतें दी हैं उनसे इंश्योर कराया कि 5-10 रुपए तो एटलीस्ट हर चीज सस्ती हो, कुछ चीजें उससे भी कम रेट्स पर है। तो आप खुद भी देख सकते हैं, आवाम भी देख रहे हैं कि लोग यहाँ से मुस्तफीद हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे खरीदारों का कहना है कि टमाटर, प्याज और तमाम सब्जियां और जो फ्रूट्स रखे हुए हैं वो आम मार्केट के मुकाबले में 20 से 50 रुपए फी किलो यहाँ पे कम है। इसके साथ साथ इस कैंप में शिकायती मरकज भी कायम किया गया है। वो खरीदार जिन्हें आम मार्केट में अशिया महंगे दामों मिल रही है, वो यहाँ आके अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहरियों को अशिया खुर्दोनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए चकवाल और तलगंग में जहां रमज़ान सहूलत बाजार कायम किए गए हैं, तो वहीं आम मार्केट में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है। तफसीलात बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ चकवाल मोहम्मद अली अवान। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को रमज़ान मुबारक में अशिया खुर्दोनोश के सस्ते दामों फराहमी के लिए चकवाल और तलगंग में जहां सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं, तो वहीं ज़िली इंतज़ामिया आम मार्केट में हमें कीमतों को कंट्रोल करने में काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। रमज़ान बाज़ार डीसी काउंटर्स के ऊपर ना सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डीसी कंट्रोल रेट ले, बल्कि उससे भी कम रेट पे लोगों को जो ज़रूरी अशिया हैं, चाहे वो मीट है, चिकन है, चाहे वो दालें हैं, कुछ भी है, सब्ज़ी है, फ्रूट है, वो मिले। मगर उसके अलावा हमें अंदाज़ा है कि ऑब्वियसली एक ट्रेंड होता है प्राइस में एस्केलेशन का, तो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अब इस पे कमिटेड और पैरा भी की फोर्सेस सिर्फ पूरा मैंने उनको डायरेक्शन दी हुई है कि सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने एक काम करना है, वो प्राइस कंट्रोल है। हमने अपने डीसी कंट्रोल रूम को और अपने पैरा के कंट्रोल रूम को फाल रखा हुआ है। किसी भी सिटीज़न की कोई कंप्लेंट है वो उसके ऊपर इमीडिएटली करें, हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हम हैवी फाइन्स भी कर रहे हैं, हम अरेस्ट्स भी करेंगे और हम सील भी करेंगे दुकानों को। सो इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि इससे फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, अपने डिप्टी कमिश्नर की बात से उनका यही कहना था कि जो ग्राम फरोशी करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, मुल्तान में रमज़ान मुबारक के आगाज़ में ही फलों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इस इजाफे पर शहरी क्या कहते हैं, बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफ़ा हो गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इजाफ़ा हुआ है वो फ्रूट्स में हुआ है, क्योंकि रमज़ान मुबारक में अमीर हो या गरीब हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि अफ्तारी के वक्त उसके दस्तरखान पर फ्रूट चाट ज़रूर हो, और इस वजह से जो फ्रूट की मांग बढ़ जाती है। मैं इस वक्त फ्रूट मार्केट में ही मौजूद हूँ, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं कि रमज़ान मुबारक से पहले फ्रूट्स की क्या कीमतें थी और अब जो है वो फ्रूट्स की क्या कीमतें हैं। और एक 300 रुपये दर्जन देंगे, जबकि रमज़ान शरीफ से पहले यही केला मैं 150 रुपये 120 रुपये दर्जन लेता रहा हूँ इनसे। अब एक गरीब बंदा 500-550 रुपये किलो सेब कैसे ले सकता है? आप केले का देखें, केले का रेट 250 रुपये दर्जन केला दे, गरीब बंदा 250 रुपये केला कैसे परचेज करे? जी, आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि कीमतों में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, और उनका ये मुतालबा था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनको फ़ाल करें और फौरी तौर के ऊपर जो मंडियों में फ्रूट्स की गोलियाँ लगती हैं उनको कंट्रोल किया जाए, ताकि इस माह मुबारक में आम अफराद को खाने पीने की अशिया और ख़ास तौर पे जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो नॉर्मल रेट पर मुयस्सर हो सकें। ज़िला थरपारकर में रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही फलों की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे गरीब तबके की क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासर होकर रह गई है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू होते ही ज़िले थरपारकर के हेड क्वार्टर शहर मिट्टी में मुख्तलिफ जो मेवा जात है उनकी कीमतों में खासा इजाफा देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर चौक मिट्टी पर, और मेरे इर्द गिर्द बड़ी तादाद में जो है वो
और मुख्तलिफ मेवा जात के स्टॉल्स कायम हैं। जाइए यहाँ पर बात करते हैं ख़रीदारों से कि इस वक्त उनको किस कीमत पर जो मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। फ्रूट रमज़ान में बहुत इन्होंने महंगा कर दिया है। खरबूजा 200 रुपया किलो, जो ही फटे हुए रोजे वाला उसको खा ही नहीं सकता। अभी 200 रुपया किलो बेच रहे हैं और 100 रुपया बेर बेच रहे हैं। तकरीबन इससे पहले तो सस्ता था, अभी रमज़ान के अंदर इसका आना ही शर्त महंगा हो चुका है। जो फ्रूट नारंगी जो अच्छी क्वालिटी वाली 120-100 तक मिलती थी वो अभी 200-250 तक के, और ये जो सेफ थे वो अच्छी खासी क्वालिटी के 300, 350 या 250 के मिले, वो अभी 600-700 के हो चुके हैं। अभी जो रोजेदार हैं बहुत तंग है। शहरियों ने हुक्काम बाला और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि कम से कम जो सरकारी नरफनामा जारी किया गया है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ताकि यहाँ के लोग हैं वो अपने इफ्तार की खरीदारी जो है वो बआसानी कर सकें। जी, हाफिजाबाद में रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही गदाघरों की भरमार हो गई है, जिससे न सिर्फ शहरी परेशान नज़र आते हैं बल्कि उनके लिए हकदार और पेशावर अफराद में तफरीक करना भी मुश्किल हो चुका है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही हाफिजाबाद में गदागरों की यलगार ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। इस वक्त यहाँ पर गदागरों की कसीर तादाद न सिर्फ गली कुचों, बाज़ारों और शाहराहों पर भीख मांगते नजर आती है, बल्कि मसाजिद के बाहर खड़े होकर भी नमाजियों का ताक़ब करते हुए दिखाई देती है। इन बकारियों में मर्दों ख़वातीन के अलावा बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें बाज़ मेगाफोन के ज़रिए अपनी सदाएं बुलंद करते रहते हैं। और यूँ ही कोई शहरी किसी भी शॉप पर ख़रीदारी के लिए खड़ा होता है तो उसी वक्त कोई ना कोई बहकारी वहाँ पर नमूदार हो जाता है, जबकि बाज़ चौकों और चौराहों पर खड़े होकर सारा दिन गाड़ियों के ताक़ुब में मसरूफ़ रहते हैं। इस सूरत में शहरियों के लिए रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में हकदार और पेशावर अफराद में तफरीक करना मुहाल हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब गदागरी एक्ट मौजूद होने के बावजूद ज़िला भर में इन पेशावर अफराद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। जी, मोटरवे पुलिस की काजी अहमद के करीब कार्रवाई, छीना अद्वियात से भरा ट्रक बरामद कर लिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात कराची से सखर लाई जा रही थी। मुलजमान ने नवाब शाह लिंक रोड पर ट्रक छीना था। ट्रक ड्राइवर ने मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन पर इत्तला दी थी। पंजाब हुकूमत ने अफसरान के लिए नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब 1800, 2800 और 4700 सीसी की 3 गाड़ियां इस्तेमाल कर सकेंगे, जिनमें से 2 गाड़ियां के लिए हर माह 800 लीटर पेट्रोल मिलेगा, जबकि 4700 सीसी गाड़ी के पेट्रोल की कोई हद मुकर्रर नहीं है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 20, 21, 22 के अफसरान में सेक्रेटरी 2800 और 1800 सीसी की 2 गाड़ियां इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि ग्रेड 21 और 22 के अफसरान ज़ाती इस्तेमाल के लिए 200 लीटर और सरकारी इस्तेमाल के लिए लामहदूद पेट्रोल इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब 1300 और 1600 सीसी की गाड़ियां रखने के मजाज थे। ग्रेड 19 और 20 के स्पेशल सेक्रेटरी और DIG 1600 सीसी गाड़ी और 250 लीटर पेट्रोल माहाना इस्तेमाल करेंगे। पुरानी पॉलिसी के तहत ये अफसरान 1000 से 1300 सीसी गाड़ी और 175 लीटर पेट्रोल हर माह इस्तेमाल कर सकते थे। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 19 के एडिशनल सेक्रेटरी 1600 सीसी गाड़ी 200 लीटर पेट्रोल माहाना इस्तेमाल करेंगे। ग्रेड 18 में डिप्टी सेक्रेटरी 1500 सीसी गाड़ी के लिए 175 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से निकलने वाले कीमती पत्थरों और धातुओं की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद कीमती पत्थरों के कारोबार को फ़रोग देने के लिए नई मार्केट और नए बिजनेस मॉडल्स मुतारिफ कराना है। इस्लामाबाद में मुनक्किदा इस नुमाइश का एहतमाम जेम्स ऑफ द वर्ल्ड ने किया था, जहां मुख्तलिफ स्टॉल्स पर एक्वामरीन, रूबी, एमरेट्स, टोपाज और टुरमलीन समेत दीगर कीमती पत्थर रखे गए थे। पत्थरों से मुतल्लिक हमें मालूमात मिली, हमने देखने का मौका मिला, और ये भी कि ये कीमती ख़जाने पाकिस्तान के किस हिस्से में वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। नुमाइश में न सिर्फ कीमती पत्थर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाने वाले नायाब मेटल्स भी रखे गए थे।
یہ कॉपर है और कॉपर के बारे में आजकल इसकी बड़ी डिमांड की जा रही है हर तरफ से, और इसके कहते हैं कि जहाँ कॉपर की डिपॉजिट है वहाँ गोल्ड के डिपॉजिट भी होते हैं क्या? ये आप जीबी से ही बिलोंग करती है ये कॉपर। अच्छा। इसमें इनसाइड बहुत सारे गोल्ड भी आ रहा है, सिल्वर भी, बहुत सारे मेटल्स इसमें आ रहे हैं। ये जनाबन करीब इसकी कॉपर की परसेंटेज जो है ये 16+ आ रहा। अच्छा। इसकी पूरी दुनिया अभी जनाब कॉपर की तलाश में है, जिसके ज़ख़ीरे हमारे पास हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि निजी शोबे की जानिब से कीमती पत्थरों की नुमाइश पाकिस्तान के मदनी वसाइल को आलमी सतह पर उजागर करने के साथ इन कीमती पत्थरों के लिए नई मार्केट तलाश करने में मदद मिलेगी। निसार अब्बास, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।